قوم والے اکثر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اور کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیشنل ڈے کو دیکھتے ہیں، بائبل کے شرعی دن کو وہ دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرا روز سیکنڈ ڈے کو یسوع کیوں نہیں زندہ ہوا؟ پھر تیسرا روز آتا ہے اور زندگی آ جاتی ہے، ویجیٹیشن ہوتی ہے۔ تیسرا روز زندگی کا روز ہے، اس لیے تیسرے روز میں خدا جو ہے وہ بڑی قدرت کے ساتھ جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ تیسرے روز آدم بنا تھا اور تیسرے روز ہی دوسرا آدم جو زندگی بخشنے والی روح ہے وہ زندہ ہو گیا۔ صلیب تک منادی ادھوری انجیل ہے، جی اٹھنے تک منادی پوری انجیل۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے وہ مسیحی ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر مسیحی ایمان جو ہے وہ ادھورا ہے، بلکہ جس کا ایمان یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر نہیں ہے اس کی نجات بھی مشکوک ہے۔ چرچ جن حالات سے آج گزر رہا ہے، ابتدائی کلیسیا کو بھی انہی چیلنجز کا سامنا تھا۔ اگر بات یہودیوں کی جائے تو اس وقت میں ہیکل جن لوگوں کے کنٹرول میں تھی وہ صدوقی تھے، اور صدوقی جو تھے یہ قیامت کے منکر تھے۔ ان کا ایمان نہیں تھا کہ مردے جی اٹھتے ہیں، تو ہیکل اس وقت بھی ان لوگوں کے قبضے میں تھی جو اس بات کے منکر تھے کہ مردوں کی قیامت بھی ہوتی ہے۔ اور آج بھی چرچز جو ہیں وہ لوگوں کے قبضے میں ہیں جو مسیح کے جی اٹھنے کے منکر ہیں۔ آج کلیسیا اور بڑی بڑی سیمنریز جو ہیں وہ سیکولر اسکالرز کے قبضے میں آ گئی ہوئی ہیں جو مردوں کی قیامت کے منکر ہیں، اور وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ چرچ تب بھی ایسی تعلیمات کے خلاف اٹھا، چرچ آج بھی ایسی تعلیمات کے خلاف اٹھا ہے۔ تب بھی چرچ نے ان لوگوں کا سامنا کیا اور آج تک قائم ہے۔ آج بھی خدا کی زندہ کلیسیا ان نام نہاد سیکولر اسکالرز کے خلاف جو ہے وہ ایمان میں کھڑی ہے۔ کلیسیا قائم رہے گی، وہ مٹ گئے۔ ہمیں ان سردار کہنوں کے نام بھی یاد نہیں ہے، ہمیں ایسے کہنوں کے نام بھی یاد نہیں ہے جو ایسا ایمان، ایسا عقیدہ رکھتے تھے، اور ان کے نام بھی وہ مٹ جائیں گے۔ رہے گا نام دوسری کا جو زندہ ہے، جو کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور جب چرچ جو ہے یہودیہ کی سرحدوں سے باہر نکلا تو ان کا سامنا یونانی دنیا سے پڑا، جنٹائلز کے ساتھ ان کا سامنا ہوا۔ گریک فلسفی جہاں پر مردوں کی قیامت کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، ان کے جو اسکالرز تھے، جو وائز مین تھے، ان کے ہاں پہ یہ کانسیپٹ تھا کہ مردوں کی قیامت نہیں ہے، بلکہ روح جب بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو روح کی نجات ہو جاتی ہے، اور بدن میں واپس آنے کا مطلب ہے پھر سے روح کیا ہو گئی ہے؟ بدن میں قید ہو گئی ہے۔ تو ایسے لوگ جو تھے، جو ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ جب چرچز میں آئے، مسیحی ہوئے،
तो उन्होंने मसीही ईमान की, बाइबल की इंटरप्रिटेशन अपने नॉलेज, सेकुलर नॉलेज के साथ की, ताकि उसे अपने सेकुलर नॉलेज के साथ जो है वो हम आहंग किया जा सके। शायद उन्हें ये ख्याल बहुत पुराना लगा और उन्हें इस ख्याल में बेवकूफी और हमाकत नजर आई, और उन्होंने सोचा क्यों ना इस अकीदे को एक ऐसे अकीदे के साथ मिला दिया जाए जो पढ़े लिखे लोगों का अकीदा है, जो वाइज लोगों का जो है अकीदा है, और ये लोग तो बेवकूफी की बातें करते हैं। लेकिन पौलुस जो है वो इस बात की अहमियत को बयान करता है कि अगर मसीह नहीं जी उठा है तो हम अब तक किसमें हैं? गुनाह में हैं। हम अब तक किसमें हैं? गुनाह में हैं। अगर किसी का ये अकीदा है, ये ईमान है कि मसीह जी नहीं उठा है, तो वो अभी तक किसमें है? गुनाह में है। रोमियो उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत जो है वो इस बात पर जो है वो रोशनी डालती है। वहां पर लिखा है, अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। ईमान, इकरार यस्सु के खुदावंद होने का है, ईमान उसके जी उठने का है, और जी उठे मसीह पर ईमान ना लाना, नजात को ना पाना है। तो ये सारे सेकुलर स्कॉलर थियोलॉजियन जो हैं ये अभी तक गुनाह में हैं, और ये जो नाम निहाद मसीही बन के मसीही अदालों पर काबिज हो गए हुए हैं, इनकी नजात भी मशकूक है और इनकी आकबत भी मशकूक है, और ये अपने आप में जिंदगी नहीं रखते क्योंकि उनका ईमान जिंदा मसीह पर नहीं है। ईमान, पौलुस जो है वो ऐसे मसीह की मनादी करता है जो जी उठा मसीह है। अगर आप अमाल की किताब का मुताला करें तो आप वहां पर देखेंगे कि उनका बुनियादी जो जोर था, जो मजमून था मनादी का, वो जी उठा मसीह का, और जी उठे मसीह की मनादी के लिए ही स्टिफनस को शहीद किया गया। क्योंकि उस टाइम में जो हैकल के ठेकेदार थे ये उनके अकीदे और ईमान के खिलाफ मनादी करते थे, और उन्हीं की हैकल में खड़े होकर उन्हीं के ईमान, उन्हीं की अकीदे, उन्हीं के जो फेथ था, बिलीफ था, उसके खिलाफ मनादी करते थे कि मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। मनादी जो है मसीह के जी उठने के बगैर अधूरी है। हम मसीह मसलूब की मनादी करते हैं, लेकिन अगर मसीह मरकर जिंदा नहीं हुआ तो हमारी मनादी बेफायदा है, क्योंकि ऐसी मनादी का कोई फायदा नहीं है जब तक हम मसीह की मसलूबियत के साथ कब्र और मौत की फतह को शामिल नहीं कर लेते। हमारा ईमान जो है वो क्या है? अधूरा है। हमारा ईमान ऐसा ईमान नहीं है जो हमें नजात दे। इसीलिए हमारा ये ईमान है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है। अक्सर इतराज किया जाता है 3 रोज कैसे हुए। इसके लिए हमें देखना है यहूदियों के यहां दिन के कॉन्सेप्ट को। वहां पर शरई रोज हमें मिलता है। एक है नेचुरल डे, एक है वो डे जो मूसा की शरीयत के मुताबिक है, और कुदरती दिन जो है नेचुरल डे जो है उसका स्टार्ट कब होता है? जब सूरज निकलता है। शरई रोज इसके बरक्स है। वहां पर है सो शाम हुई, सुबह हुई, पहला दिन हुआ। शरई रोज क्या है?
शाम से शुरू होता है, सनडाउन से शुरू होता है, जब सूरज गुरूब हो जाता है। तो यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो वो जुमे का जो दिन था वो पहला दिन था। जैसे ही गुरूब आफ्ताब हुआ दूसरा दिन शुरू हो गया। और उसके बाद संडे को वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। तो ये शनि रोज है। बाज लोग जो है वो इससे धोखा खा जाते हैं, उनकी अक्लें जो है वो उन्हें फरेब देती हैं और वो शनि रोज को समझे बगैर इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। और गैर कौम वाले अक्सर जो है वो सवाल करते हैं और कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो नेशनल डे को देखते हैं, बाइबल के शरई दिन को वो देखते नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तीसरा रोज ही क्यों, सैटरडे को यीशु क्यों नहीं जिंदा हुआ? सैटरडे को यीशु क्यों नहीं जिंदा हुआ? पहली बात, उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट था कि 3 दिन तक कोई जिंदा हो सकता है। रूह जो है वो बदन के पास ही मुंडलाती रहती है। शायद कुछ ऐसे वाकयात हुए थे, शायद कुछ लोग कोमा में चले गए थे और वो जिंदा जब हुए तो उन्होंने, जब वो होश में आए तो उन्होंने समझा कि जिंदा हो सकते हैं। शायद कुछ लोग बेहोश हो गए, वो होश में आ गए जिन्हें मुर्दा करार दिया गया था। तो इससे उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि तीसरे रोज तक कोई जिंदा हो सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया तो चौथे रोज पहुंचा, ताकि ये ना समझे कि वो खुद से जिंदा हो गया या वो मरा ही नहीं था। इसीलिए उसने क्या किया? वेट किया। और वेट करने के बाद वो कहां पर पहुंचा? लाजर की कब्र पर चौथे रोज पहुंचा, जब ये बात जो थी वो समझी जाती थी कि बदन जो है वो बदबू छोड़ना शुरू हो गया है, डिकम्पोज हो रहा है। उसने तब उसे जिंदा किया। लाजर निकल आ, और लाजर निकल आया। वो जो मौत के बंधनों को खोलता था वो खुद मौत के बंध में रह नहीं सकता था, चुनाचे वो बड़ी कुदरत के साथ तीसरे रोज जो है वो जिंदा हो गया। तीसरा रोज एक और एतबार से भी बड़ा अहम है। इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। जमीन वीरान सुनसान गहराव के ऊपर अंधेरा था। खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। कोई जिंदगी जमीन पर नहीं थी, वो वीरान थी, सुनसान थी। फिर तीसरा रोज आता है और जमीन पर जिंदगी आ जाती है, वेजिटेशन होती है, ट्रीज आ जाते हैं, फलदार फूलदार पौधे जो है वो उग जाते हैं। तीसरा रोज जिंदगी का रोज है। इसलिए तीसरे रोज में खुदा जो है वो बड़ी कुदरत के साथ जो है वो जिंदा हो गया, क्योंकि तीसरा रोज जो है वो किसका रोज है? जिंदगी का रोज है। क्रिश्चियन के इस कौम में, इस नज़म में अगले 3 रोज भी बड़े अहम हैं। और अगले तीसरे रोज क्या हुआ? खुदा ने जमीन की मट्टी से आदम को बनाया। तीसरे रोज आदम बना था और तीसरे रोज ही दूसरा आदम जो जिंदगी बख्शने वाली रूह है वो जिंदा हो गया। वो क्या हो गया? जिंदा हो गया। इसलिए तीसरा रोज जो है वो क्या है? जरूरी है। ये तीसरे रोज में क्या आई थी? जिंदगी आई थी। क्या आई थी? जिंदगी आई थी। पहला आदम तीसरे रोज मट्टी में से निकला, दूसरा आदम भी तीसरे रोज जो है वो कब्र में से निकला, गोया मट्टी में से निकला। खुदा ने दूसरे आदम को भी कहां से लिया? फिर मट्टी से लिया। ये यीशु मसीह जो है वो जो मरा, तो पहला आदम जो था जिसमें हम शामिल थे वो मर गए। हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ क्या हुई?
मसलूब हुई। मैं मसीह के साथ मुआ, मैं मसीह के साथ दफन हुआ, और जब मसीह जी उठा तो एक नई तहलीक हुई, एक नई क्रिएशन हुई, एक नई ह्यूमैनिटी ने जन्म लिया। चुनाचे लिखा है, अब जो मसीह यस्सु में है वो नया महलूक है, वो नई क्रिएशन है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। नई हो गई। तीसरा रोज एक नई बिगनिंग है, एक नई क्रिएशन का आगाज है। इसका तवल्लुद जो है वो तहलीक के साथ है। किसके साथ है? तहलीक के साथ है। पहला रोज जो है वो सलीब पर है। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने, जो तहलीक का खुदा है, उसने मखरसी का काम किया, रहाई का काम किया, और उस काम की तकमील पर उसने कहा तमाम हुआ। क्या हुआ? तमाम हुआ। और जब खुदा ने तहलीक के काम को तमाम किया, कंप्लीट किया, उसके बाद उसने सैटरडे को रेस्ट की। यीशु मसीह भी सैटरडे को क्या कर रहा था? वहां पर रेस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? रेस्ट कर रहा था। और संडे का रोज, हफ्ते का पहला रोज, एक नए बिगिनिंग को जाहिर करता है। तो मसीह यीशु में हमारी जो है वो एक नई शुरुआत हुई है। पुराना वक्त, तारीकी का वक्त, जब हम तारीकी, मौत और गुनाह के कब्जे में थे, वो रोज जो है वो डूब गया है मसीह के कब्र में डूबने से, और अब एक नए दिन का आगाज हो गया है। और हम जो है उसमें क्या हुए हैं? मसीह के साथ जिंदा हुए। मसीह के साथ क्या हुए हैं? जिंदा हुए। तीसरा रोज जो है, इसका तल्लुक जो है वो नबियों की पेशीन गोइयों से है। इसका तल्लुक किताब मुकद्दस से है। इसलिए पौलुस कहता है किताब मुकद्दस के मुताबिक। इसीलिए तीन ये बार बार बाइबल में दोहराया जाता है। इसके हिडन जो है वो मीनिंग है, जो कि यीशु मसीह की जात में क्या होते हैं? रिवील होते हैं। ये तीसरा रोज था जब इसहाक को लेकर अब्राहम निकला, और तीसरे रोज उसे उसके बदले में बड़ा मिला, और उसकी जान बेटे की बच गई। और उसने कहा, उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा, यानी खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। अब जो है वो सारे बेटे बचेंगे एक के जरिए से, जो पहाड़ पर क्या किया जाएगा? मुहैया किया जाएगा। तो ये तीसरा रोज था। कैसे कितना रोज था? तीसरा रोज था। जब खुदा मिस्रियों से इसराइल को लेकर निकला, सीना पर पहुंचते 3 महीने हो गए। 3 खुदा मूसा से मिला और कहा 3 दिन के बाद मैं लोगों से मिलूंगा। वो अपने आप को क्या कर ले? पाक कर ले, साफ कर ले, तैयार कर ले। तो यीशु मसीह तीसरे रोज अपने लोगों से मिलने को निकला। उसने ये नहीं कहा तुम पाक और साफ कर लो, बल्कि सलीब पर चढ़कर उन्हें हमेशा के लिए पाक और साफ कर दिया। उन्हें क्या कर दिया? पाक और साफ कर दिया है। और उन्हें पाक और साफ करने के बाद खुद उनसे मिलने के लिए वो आ गया। खुद उनसे मिलने के लिए आ गया। तीसरे दिन का जो तौलक है, ये होसिया नबी की पेशीन गोई से भी है। मेरे साथ देखिए, होसिया नबी की किताब, उसका 6वां बाब है। लिखा है 6वां बाब और उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक, आओ हम खुदावन की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा
बख्शे गा, उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयाते ताजा बख्शेगा, 2 रोज के बाद हमको हयाते ताजा बख्शेगा और 30 रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। इस्राएल ने गुनाह किया, खुदा ने उन्हें जो है वो गैरों के हवाले किया। उसके बाद वो कहते हैं आओ हम खुदा की तरफ क्या करें, रजू करें। वो हमें क्या करेगा, वो हमें जिंदगी बख्शेगा, वो हमें हयात ताजा देगा, वो 30 रोज हमें जिंदा कर देगा। ये लोगों का कहना था। नबी कहता है तुम्हारी तौबा, ये तो सुबह की ओस की मानद है, ड्यू की मानद है जो पड़ती है नबातात पर और सूरज निकलते ही डिसअपीयर हो जाती है। तुम्हारी तौबा एक घड़ी भी कायम नहीं रहती। तुम्हारी तौबा जो है वो सुबह के बादल की मानद है। मेडिटेरेनियन सी के किनारे पे इस्राएल है और उसके जो ईस्ट में मशरिक में है वो डेड सी है, तो वहां पर मॉर्निंग में अमूमन बादल बन जाते हैं, वो जल्दी से डिसअपीयर भी हो जाते थे। वो कहते हैं वो सुबह के बादल की तरह जो जल्द डिसअपीयर हो जाते हैं। तो खुदा को उनकी ऐसी तौबा कबूल नहीं थी जो वो कह रहे थे कि हम रुजू करते हैं खुदा की तरफ, हम तौबा करते हैं, वो हमें हयात ताजा बख्शेगा, वो दूसरे रोज में हमें जिंदगी देगा, तीसरे दिन रोज वो उठा खड़ा करेगा। उनकी तौबा कायम रहने वाली नहीं थी। हम सब जिंदगी में ऐसे लम्हों से गुजरते हैं और हमारी तौबा अक्सर दायमी तौबा नहीं होती। हम पालूस की तरह कह उठते हैं, जिस बुरे काम का इरादा नहीं करता वही मुझसे हो जाता है, जिस नेकी को काम को करना चाहता हूं वही मुझसे नहीं होता। तो यीशु मसीह हमारा नुमाइंदा बनके उसने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और जैसे खुदा चाहता था हम रुजू करें, हम ना कर पाए, लेकिन जो हमसे ना हो सका वो मसीह ने हमारी खातिर कर दिखाया। वो हमारे लिए क्या बना, गुनाहगार बना। उसने हम सबकी बदियों को अपने ऊपर ले लिया और इस्राएल जो के गुनाहों का इकरार करके सारे का सारा यूहन्ना के पास नहीं आ रहा था, उन्हें बपतिस्मे की जरूरत थी, तो उनका नुमाइंदा बनकर खुद उस रास्तबाजी के काम को उसने क्या किया, पूरा किया और सबके गुनाहों को ऊपर लिया और रजू किया हमारी खातिर। और खुदा ने उसे 30 रोज क्या किया, जिंदा क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। उसने खुद बनवाया, इस मकदस को ढा दो, मैं 30 रोज से फिर से क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। और उसने कहा कि जैसे यूना 3 रोज 3 रात मछली के पेट में रहा। असल में बात ये नहीं कि कितना वक्त मछली के पेट में रहा, असल बात यह थी कि यूना जब मछली के पेट में था तो मछली उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाई। असल बात क्या थी, मछली उसे डाइजेस्ट, हम तो एक टाइम गोश्त खा ले तो चंद घंटों के बाद हम डाइजेस्ट कर जाते हैं, कोई बड़ा सख्त गोश्त हो, मछली इतने दिनों तक उससे डाइजेस्ट नहीं कर पाई। उसके बॉडी के जो एसिड थे वो उसके बदन को तोड़ नहीं सके। ऐसे ही था मसीह, कब्र उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी, कब्र उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि उसके बारे में पेशतर से खुदा के कलाम में लिख दिया गया था, ज़बूर 16 और उसकी जो है 9वीं से 10वीं आयत है, इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान, मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा। तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस
उसको सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। सारा मुखालफों का, नाकिदों का, गैर कौम वालों का जोर इसी बात पे है। एक तो शरीरों को नहीं समझते और हम पर उंगलियां उठाते हैं, उंगशत नुमाई करते हैं, और फिर ये बात भी समझते कि वो यूना की बात इशारा किस तरफ है, दिनों की तरफ नहीं है, बदन के गलने सड़ने की नौबत पहुंचने नहीं देगा। इसीलिए ज़बूर में पहले से कह दिया गया, क्योंकि यही था कि तीसरे रोज जो है वो हयाते ताजा बख्शेगा, चौथे रोज के बाद जिस्म जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए भी वो तीसरे रोज मुर्दों में से क्या है, जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तीसरे रोज जीना उठना जो था वो जरूरी था। किताब मुकद्दस की मुताबिक पैदाइश से ही दास्तान जो है वो शुरू हो जाती है, और मसीह में आकर उसकी क्या होती है, तकमील होती है। सारी चीजें यीशु मसीह ने कहा, तुम किताब मुकद्दस को पढ़ते हो, खूब करते हो, ये मेरी क्या देती है, गवाही देती है। बाइबल जो है वो क्राइस्ट सेंटर्ड है। सारी कुर्बानियां मसीह के गिर्द घूमती हैं, सारी नबूतें मसीह के गिर्द घूमती हैं, सारी कहानियां मसीह के गिर्द घूमती हैं, सारी बादशाहियां मसीह के गिर्द घूमती हैं। और जो नजात दहिंदे हैं, उजात की किताब में जो सेवियर हैं, वो भी इसी सेवियर के गिर्द घूमते हैं। सारे क्या थे, अक्स थे। सारी बाइबल किसके गिर्द घूमती है, यीशु के गिर्द, उसी का अहाता है। जैसे गैलेक्सी जो है वो अपने सेंटर पे घूमती है, वैसे ही किताब मुकद्दस मसीह की जात का अहाता करती है, उसके गिर्द घूमती है। तीसरे रोज मसीह बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा है, और ये ईमान के लिए जरूरी है, इसके लिए ईमान अधूरा है। अब यीशु ने तो सूली पर जान दे दी थी, कुर्बानी हो गई, तो जब कुर्बानी हो गई तो उसके बाद कब्र में जाना क्यों जरूरी हो गया, कब्र में जाना क्यों जरूरी हो गया। देखिए हवाले को, रोमियो उसका 4 बाब है और उसकी 25 आयत है। ये रोमियो 4 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, तो 24 और 25 पढ़ते हैं। बल्कि हमारे लिए जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। मसीह जो है वो हमारे जस्टिफिकेशन के लिए जी उठा। अगर यीशु मसीह ना जी उठता तो हमारी जस्टिफिकेशन ना होती, हम मुफ्त में रास्तबाज ना ठहराए जाते। बाप का बेटे को मुर्दों में से जिंदा करना इस बात की तस्दीक थी कि कफारे का काम जो है वो पूरा हो गया है और तमाम कीमत जो है वो पे कर दी गई है। सारी पेनल्टी को, रैंसम को जो है वो क्या कर दिया है, उन्हें भेज दिया गया है। और बाप की तरफ से यीशु को मुर्दों में से जिलाना इस बात पर मोहर थी, रसीद थी कि खुदा का जो उसका इंसाफ है, उसके सारे तकाजे पूरे हो गए हैं, पूरी कीमत चुका दी गई है और उस पर जी उठना जो है खुदा की तरफ से तस्दीक की मोहर थी। अहम चीज ये है कि मसीह जो है वो जमीन पर रहा। 30 साल से ज्यादा का अरसा रहा, 20 में कुर्बान क्यों नहीं हुआ?
مسیح کی جو زمینی زندگی تھی یہ وہ راست بازی ہے جو ہمارے کھاتے میں آ گئی، ہمارے کھاتے میں آ گئی ہے۔ صلیب پر اس نے ہمارے گناہوں کی سابقہ، موجودہ، آئندہ کی پوری قیمت کیا کر دی ہے؟ چکا دی ہے۔ اور اب مردوں میں سے جی اٹھ کر وہ جو گناہوں کو اٹھائے ہوئے تھا خود جسٹیفائیڈ ہوا ہے، اور اس میں ہم بھی کیا ہو گئے ہیں؟ جسٹیفائیڈ ہو گئے ہیں اور مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ خدا کے برگزیدوں پر، خدا کے الیکٹ پیپل جو ہیں ان پر کون نالش کرے گا؟ کون ان کو سو کرے گا؟ خدا وہ ہے جو انہیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ تو یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے یہ ہماری جسٹیفیکیشن کے لیے ہے، راست بازی کے لیے ہے۔ کفارے کا کام تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک مسیح زندہ نہیں ہوگا۔ کفارہ فقط صلیب تک محدود نہیں ہے بلکہ جی اٹھنے تک۔ اسی لیے ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ کسی اور مصلوبیت کے دن وہ عبادت نہیں انہوں نے رکھی، انہوں نے جی اٹھنے کے دن عبادت کا دن کہا ہے۔ ہفتے کے پہلے روز وہ روٹی توڑنے کے لیے کیا ہوئے؟ جمع ہوئے۔ اس نے کہا ہفتے کے پہلے روز تم کچھ رکھ چھوڑا کرو، یعنی ہدیہ وغیرہ کے لیے۔ یہ لوگ ہفتے کے پہلے روز جو تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جی اٹھنا، اس کا ایمان جو ہے وہ کتنا اہم ہے۔ تو وہ جی اٹھے مسیح کی منادی کریں۔ کس مسیح کی؟ جی اٹھے۔ اگر نہ جی اٹھتا تو مجھے اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ اسی لیے اگر مسیح نہ جی اٹھتا تو میں پھر بھی موت کے قبضے میں رہتا، پھر بھی موت کے اختیار میں رہتا۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر قبر میں جا کر ہمارے اس اینمی کو بھی شکست دی جو موت ہے، جو آدم سے لے کر مسیح تک جو ہے لوگوں پر حکمران تھی۔ تو وہ موت کے سائے کی وادی میں گیا اور وہاں پر موت سے لڑ کر اس نے موت کو کیا دی؟ شکست دی۔ اے موت تیرا ڈر کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ موت فتح کا لقمہ۔ یسوع مسیح کی زندگی موت کو نگل گئی، بالکل ایسے ہی جیسے اس کی پاکیزگی کوڑیوں کو جو کسی کو چھو جائے ناپاک کرتے تھے، لیکن جب اسے چھوتے تھے تو خود پاک ہو جاتے تھے۔ اس عورت کے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، جو شرعی طور پر ناپاک تھی، جس چیز کو چھوئے وہ ناپاک، جس پر بیٹھے وہ ناپاک، لیکن جب اسے چھوتی ہے تو یسوع مسیح ناپاک نہیں ہوتا، اس کی پاکیزگی اس کی ناپاکی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طور پر جب وہ موت میں گیا تو اس کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، موت اسی کا لقمہ بن گئی۔ موت اسی کا، یہ سایہ کی آیت ہے جس کو اس نے کوٹ کیا ہے پالوس نے۔ بڑی دلچسپ سٹوری ہے اس کے پیچھے۔ اسرائیل اکثر بال پرستی میں پڑ جاتا تھا اور بال کو پوجنا شروع کر دیتا تھا۔ بال جو تھا وہ اسٹرانگ گارڈ تھا، بادل کو بیچتا تھا، ویجیٹیشن ہوتی تھی، پھول آتے تھے، پودے آتے تھے اور اس سے پھل پیدا ہوتے تھے، اناج آتا تھا، زندگی آتی، فصل بڑھتی ہے، نسل بڑھتی ہے، جانور بڑھتے ہیں۔ تو وہ اکثر بال کو کیا کرتے تھے؟ پوجتے تھے۔ تو بال کی جو سٹوری ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کنانیوں کے ہاں یہ تھا کہ ان کا سینئر گارڈ جو ایل تھا یہ بڈھا ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ لیڈرشپ جو ہے وہ کسی نئے دیوتا کو دے دی جائے۔ تو اب لیڈرشپ کی منتقلی تھی تو دیوتاؤں میں لڑائیاں بھی ہوئی۔ بال جو ہے وہ سمندر دیوتا کے ساتھ، یوم کے ساتھ جو ہے وہ اس نے فائٹ کی اور وہ غالب آیا، اور اس کے بعد وہ ایل کے پاس جاتا ہے اور بادشاہی کو لیتا ہے۔ اب ایل جو ہے وہ اس کو سارے یونیورس کا جو ہے وہ بنا دیتا ہے، چیف گارڈ بنا دیتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ایک پارٹی کرتا ہے۔ بال جو ہے، بال سب دیوتاؤں کو بلاتا ہے
लेकिन वहां पर वो गलती से मौत को भी दावत दे देता है। लफ्ज मौत हकीकत में उस देवता का नाम है, और ये ओरिजिनल में भी मौत है। हमारा उर्दू का जो वर्ड मौत है ना, पंजाबी का, ये उन्हीं से आया है। ये ओरिजिनल में भी क्या है, मौत ही है। तो उसने मौत को दावत दे दी। अब मौत वो चीजें तो नहीं खाएगी जो बाकी खाते हैं, वो तो एक ही चीज खाती है। उसको बाल नजर आया, वो बाल को खा गई। तो किसको खा गई? बाल। तो उसने कहा कि हमारा खुदा बाल की तरह का खुदा नहीं है, वो जिंदगी का खुदा है। और चुनाचे उसने क्या किया, बाल परस्ती का जो मरकज था वहीं पर अपने नबी को भेजा, और नबी ने जाकर वहीं पर जो है वो बाल की पुजारन के बेटे को क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। तुम्हारा बाल जिंदगी के लिए जो है मुख्ताज है दूसरों का, और वो मौत से मार खा जाता है, लेकिन मेरा तो नबी, मेरा खादम भी जिंदगी दे देता है। और फिर उसने कहा मौत फतह का लुकमा हो गई, जिससे देवता भी नहीं बचे, बादशाह भी नहीं बचे। वो जो खुद को खुदा और खुदावन कहते हैं, फिरौन जो खुदा कहलाता और खुदा का बेटा भी बनता था, वो भी नहीं बचा। उसको किसने मारा? यीशु मसीह ने। मौत फतह का लुकमा हो गई, और यीशु मसीह ने मौत को शिकस्त देकर हमें वो फतह बख्शी है कि अब हम मौत की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं, अगरचे मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं हरगिज़ किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। उसने फरमाया है दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो कब्र में भी आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ होगा। जिसने फरमाया है क़यामत और जिंदगी मैं जी उठा मसीह, मुफ्त में आसमां से उठे, जी उठा मसीह। सिर्फ सलीब पर हमें गुनाह और इब्लीस से नहीं छुड़ाया, बल्कि कब्र में जाकर हमें सबसे बड़े दुश्मन मौत से भी रहाई बख्शी। तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। उसने मौत की कर्ज को रिवर्स कर दिया और हमें एक नई जिंदगी बख्शी है। इसके लिए हमें खुदा का क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए, और अपनी मनादी सिर्फ सलीब तक महदूद करनी नहीं चाहिए। उसमें जी उठने को इंक्लूड करेंगे तो आपकी मनादी में क्या होगी? कुदरत होगी। सलीब तक मनादी अधूरी अंजील है, जी उठने तक मनादी पूरी अंजील। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।